as much as I want. I can go down, narrow down, I can shout, I can scream, and I can smile and talk. So let's make it very interactive. Thank you so much, Kalpan bhai, and I am sure, even though I took 1.5 hours to come here, 90 minutes to come here for a 30-minute talk, but I am so pleased that I have come here at the club where the club itself is inspiring for me. It was born in 1972 and I was born on 5th June 1973. So I'm coming here and talking about environment itself, and when Veena Baby is there as an audience, what better do I need than anything else? Thank you so much. Shashwat, please don't call me auntie. So why I'm saying that, because we're talking about today back to basics. When Kalpan bhai called and shared with me that would like to talk about આપણે environment ની વાતો કરીએ, તો मैंने कहा environment ની વાતો કરીએ, શું ટોપિક પર તમારી ઈચ્છા છે કે હું વાત કરું? તો મને કે save earth. એટલે હું વિચારમાં પડી ગઈ, save earth. મેં કે આ તમે શું વાત કરો છો? મારી એટલી હેસિયત જ નથી કે હું અર્થ ને સેવ કરવાની વાત વિચારું. પણ earth is something which is beyond the capacity of all the human race together to save earth. So let's talk on it. Ki why am I, and then you can give me your inputs ki maru vicharu sacho che ki khotu che, or may I need to change my thought process, because very frankly I don't believe in saving earth. I don't believe in saving planet. Save earth, save planets are just to make us feel good as an environment. Green eco જે આપણે જેને કહીએ કે ગ્રીન ઇકો, કે અમે કશું કરીએ છીએ. માને આપણે ના કહી શકાય કે માં હું તને બચાવીશ, કહેવાય? ના કહેવાય. પણ માને એટલું તો કહેવાય કે માં તારા ઉપર જે બોજ છે, આટલા છોકરાઓને ઉપાડવાનું, અને એમાં તું થાકી જશે, અને ડે બાય ડે તું આટલી કસરત કરીને જેટલા છોકરાઓ અમે એડ કરતા જઈએ છે, તો તારી કેરિંગ કેપેસિટી વધારતી જાય છે. પણ માં તું ક્યાં સુધી વધારશે તારી કેરિંગ કેપેસિટી? સવાલ છે આપણો. આપણે માની, આપણી માં પહેલા 8 છોકરાઓ હતા ઘરમાં, રમતા રમતા મોટા થઈ જતા હતા. આજે 2 છોકરાઓ મુશ્કેલથી માં મોટા કરી શકે છે. એક છોકરું હોય તો સૌથી બેસ્ટ. અને આજકાલની નવી જનરેશન તો અમે જોઈતા જ નથી. એમ આઈ રાઈટ? તો મધર, આપણે એઝ અ હ્યુમન મધરની કેરિંગ કેપેસિટી ઓછી થતી જાય છે, અને આપણે જે અર્થ કહીએ છીએ, જે આપણી માં છે, એની આપણે પોપ્યુલેશન આપણું કેટલું છે? 8.1 બિલિયન. અને હજી 2050 સુધી કેટલું થશે, અને આપણે કેટલા હતા? આપણે એની કેરિંગ કેપેસિટી વગર વિચારીએ વધારતા જઈએ છે, કરતા જઈએ છે. આપણે ટેકનોલોજી ડ્રીવન છીએ, પણ આપણું નેચર જે છે ને, એ ફોટોસિન્થેસિસ એ જ વર્ષો જૂનું કરે છે. 3.5 બિલિયન જૂનું એ જ ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ ચાલે છે. એમાં કોઈ બદલાવ નથી, એમાં કોઈ ટેકનોલોજી નથી, અને જરૂર પણ નથી નેચરને ટેકનોલોજીની. પણ માણસ આપણી ટેકનોલોજી એટલી વધારતી જઈને પોતાના માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે માને કહે છે કે જેટલા અમને ઉપાડી શકો ઉપાડતા જાઓ, અમે તો વધતા જઈશું. એટલે હું કહું છું કે સેવ અર્થ, સેવ એન્વાયરમેન્ટ કોન્સેપ્ટ જે છે એ આપણા ગ્રીન ઇગો માટે છે. આપણે જો સાચેમાં વાત કરીએ, માને સમજીએ, અર્થને માં સમજીએ, તો આજે હું એક ટોપિક પર વાત કરવાની છું જેને કહેવાય અર્થ ઓવરશૂટ ડે. અર્થ ઓવરશૂટ ડે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ સાંભળ્યું હશે, વોટર ફૂટપ્રિન્ટ સાંભળ્યું હશે, કાર્બન CO2 એમિશનની વાત, પર આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અર્થ છે કે અર્થ ઓવરશૂટ ડે. એનો મતલબ એ છે, ઇટ મીન્સ ધેટ whatever natural resources earth can produce to sustain. Now imagine, earth is not for us. We are not the only kids of earth. We are just one of the species out of millions of species, and very frankly 150 to 200 species are getting extinct every day. 150 to 200 million species, I mean 150 to 200 species are getting extinct every day. એમાંના આપણે એક હ્યુમન એક સ્પીશીસ જ છીએ. કાલે એ એક્સટિંક્ટ થઈ જશે ને તો અર્થને કઈ ચિંતા નથી.
Earth is not worried. I'm just trying to relate with the numbers. કે આટલા એક્સટિંક્ટ થાય છે તો અર્થ રડે છે? નથી રડતી. કાલે એક સ્પીસીસ હજી હ્યુમન્સ હોમો સેપિયન્સ સેપિયન્સ એ એક્સટિંક્ટ થઈ જશે તો અર્થને કશું જ ફરક નથી પડવાનો. But we have to save Earth because we want to save ourselves. આપણી એમાં શું કહેવાય સ્વાર્થ છે. આપણો સ્વાર્થ છે. કેમ કે અર્થ તો 6 વાર એક્સટિંક્શન કરી ચૂકી છે. માસ એક્સટિંક્શન. આપણી પહેલા ડાયનોસોર્સ હતા, માસ એક્સટિંક્ટ થઈ ગયું હતું. હીટ વેવ, કોલ્ડ વેવ બધું જ થઈ ચૂક્યું છે અર્થ પર. Earth is not worried. New people come, new species come, old species go. આ ચક્ર તો અર્થ માટે ચાલુ જ રહેવાનું છે. But as humans, we can survive in the environment which is there at present. Our survival, we can't go to the polar and survive. We can't go to the Gobi desert and survive. There are very few who have been able to adapt. But not all human species. So tomorrow Earth becomes our entire ice polar gray, so we will not survive. Or Earth becomes desert, we will not survive. There are species which are there in the water. So there are species below, in the air, over the land, on the land, below the land, in the water. So there are so many species. Earth में कितना बच्चाओं છે? મને એક વાત કહો, પહેલા અગર 12 બચ્ચાઓ પેદા કરતી હતી, માને એક બચ્ચોથી ડેથ થઈ જતી હતી તો માને એટલે ટેન્શન હતો? આપણે if I talk to my grandmother, my नानी की my दादी, तो बोले बेटा 2 बच्चे तो बीच में मर गए थे, 8 तेरे हैं बीच में. पर वो 2 मर्दे बड़े कैजुअली बोलती है. उनको उतना इफेक्ट नहीं होता है इमोशनली. अर्थ वही है. इतने सारे स्पीशीज है. इंसान खत्म हो जाएगा तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. राइट? हमें फर्क पड़ने वाला है क्योंकि हम एक्सट्रीम अर्थ के टेम्परेचर में जी नहीं पाएंगे. सो हमें जो करना है वो अर्थ को समझना है और कहीं ना कहीं अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जितना वो कैरी कर सकती है उतने ही हम होने चाहिए. और हम अकेले नहीं है, हमारे आसपास इंटरडिपेंडेंस बहुत है. अभी हम लोग जब बचपन में फूड वेब सिखाते हैं ना तो बोलते हैं कि नेवले को सांप को नेवला सांप को खाता है, पर वो खाली एक ही फूड वेब है. हमारी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है इतने सारे. आज मेरे हाथ पे कितने मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी अर्थ के बच्चे ही हैं. उसके लिए कोई स्पीशीज में कोई अंतर नहीं है. सो हमें जो समझना है वो अर्थ ओवरशूट डे कि जितना अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकती है उतना हम कंज्यूम करें. एम आई राइट? 1:1. अपने किचन में जितना खाना बनता है उतना सामने कंज्यूम होना चाहिए. हम एक्सपेक्ट ज्यादा करें कि भैया खाना तो हमें ज्यादा चाहिए और किचन में स्टोर में इतना ही है, खाना इतना ही बन रहा है, तो ये बैलेंस इम्बैलेंस हो गया. अभी इम्बैलेंस हो गया, कौन इफेक्ट होगा? क्योंकि हमारी नीड्स बेस. सो अभी जो सिचुएशन है 2024 में या क्या बोलते हैं ये कैलकुलेट होता है कि भैया एवरी ईयर हम जितना एक अर्थ प्रोड्यूस करती है उतना हम कंज्यूम करते हैं. तो 1:1. ठीक है. सो 1971 में ये बात थी अराउंड 25 दिसंबर. 71 इसलिए कह रही हूँ कि हमारा 72 का क्लब है. So 1971 में था अराउंड 25 दिसंबर. उसके बाद 72 में हम नवंबर तक आए. ठीक है. तो एक अर्थ जितना बनाती है हम 25 दिसंबर तक सब यूज कर लेते हैं. तो हम 5 साल जो थे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते थे. अब ये हालत है 2024 में 1 अगस्त को हमारा 1 अर्थ कंप्लीट हो गया. 1 अगस्त को हम बेटर हुए. 28 जुलाई को थे. Can you just go back? Highway? हाँ बस नहीं ये वाला नहीं. You're going ahead. You need to go back. हाँ after this now. 2 अगस्त 2023 था हमारा. कोविड के टाइम पे हम जुलाई में कहीं थे, बीच में का मिस हो गया. बट कोविड पे हम लोग 28 जुलाई तक पहुंच गए थे. फिर हम वापस कोविड का टाइम खत्म हुआ, फिर वापस हम अगस्त की तरफ जा रहे हैं. सो 2023 में 2 अगस्त को 1 अर्थ कंज्यूम हो चुका था. 2024 में 1 अगस्त को 1 अर्थ कंज्यूम हो चुका है.
अब हम भी जो जी रहे हैं अभी 5 अगस्त को, वो एक्सटेंशन पे जी रहे हैं। Are you getting my point? Can I? So why I chose this topical? First वाला वापस ग्राफ ले लें. So basically, collectively I'm talking about collectively over the entire or connecting all the countries. सब countries की मैं बात कर रही हूँ कि एक अर्थ के सामने हम 1.75 का कंजम्पशन है, 0.75 अर्थ ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कलेक्टिवली एज अ होल कंट्री। क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट किया? बैक टू बेसिक्स, उसकी मैं बात बताती हूँ। कैन वी कम फॉरवर्ड? उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बैक टू 31 दिसंबर को हमारा अर्थ ओवरशूट डे, मतलब 1 अर्थ जितना प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास सेविंग तो है ही नहीं, इंडियंस तो सेविंग में मानते हैं, सेविंग नहीं, पर जितना हम इनकम है उतना ही सामने हमारा एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो हमारा टैली होने के लिए हमें कहीं ना कहीं अर्थ ओवरशूट डे को डिले करना पड़ेगा, अर्थ ओवरशूट को डिले करना। सो देयर आर वेरियस वेज हाउ वी कैन डू इट। 8 डेज इफ वी ग्रो, अभी हम लोग एनवायरनमेंट के नाम पे हम प्लांटेशन में बिलीव करते हैं, इसलिए मैं आज सारी बात बता रही हूँ कि सिर्फ प्लांटेशन से एनवायरनमेंट का काम नहीं हो जाता। तो अगर हम प्लांटेशन, हम फॉरेस्ट प्लांटेशन करें तो 8 डेज ओवरशूट होगा, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बाइक करें, वॉकिंग करें, हमारा ड्राइविंग कम करें, इंडिविजुअल ड्राइविंग, तो 13 डेज हम मूव करेंगे। एनर्जी पे हम लोग इफेक्टिवली काम करें, स्पेशली ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो हम 21 डेज मूव करेंगे। आज 2 अगस्त से 21 डेज एक्स्ट्रा करेंगे। अगर हम कार्बन कंपोनेंट जैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, वो सारा हम अगर इंक्लूड करते हैं तो हम लोग 93 डेज करेंगे, which is something we need to work on. So collective, individually. Next, can I have Kalpana? Food. Meat is one of the highest carbon emission industry. अगर हम लोग प्लांट बेस्ड फूड पे जाते हैं तो 17 डेज मूव करते हैं। If we cut food waste in half of the world, 13 डेज हम मूव कर सकते हैं। Again, one child concept पे आए, if every other family has one less child and parenthood, we can postpone by 2 years, by 2050 at least हम 49 days एक साल में मूव कर सकते हैं। So ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पे आप ये नेट पे सब चीजें देख सकते हैं, हाउ डू दे कैलकुलेट द अर्थ ओवरशूट डे। अगर एवरी ईयर हम 5 डेज पे शूट सेव करते जाओ हम लोग अपना, जैसे आज 1 अगस्त है तो इट कैन बी 6 अगस्त, फिर नेक्स्ट ईयर इट कैन बी मोर 5 डेज एंड कीपिंग इन माइंड 12 अगस्त, ऐसे करते जाओ 2050 तक एटलीस्ट हम लोग 20-50 तक हम लोग 1:1 आ जाएंगे। ये बूंद बूंद से सागर भरता है वाली कहानी है। इसमें अगर बीच में कुछ हो गया तो वापस हम बैक टू जून जुलाई मई तक पहुंच जाए, फिर वापस आगे बढ़ना है हमें। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें ऐसे बूंद बूंद करके आगे बढ़ना है, फिर वापस पीछे जाना, फिर आगे बढ़ना है, यही करना है, या हमें एक साथ में उसको जितना जल्दी 1:1 तक पहुंचे फिर हम लोग कम करें, ठीक है, वो करें। तो थोड़ा क्या इंडियन से सेविंग तो करनी है, स्टोर तो हमें रखना ही है। हमारे किचन में सिर्फ खाना नहीं बनता, हमारा स्टोर किचन से बड़ा होता है। Am I right? ઘરે આપણે ભલે આજ એક જ દાળ બનાવી પણ 15 દાળ મારા સ્ટોરમાં પડી હોય, આખા વર્ષનું સ્ટોક કરી હોય। અને કોવિડ પછી તો વધારે પડી હોય, ખબર નહીં કાલે ક્યારે કોવિડ તો એટલે अब मोदी जी का भी मूड हो जाए, लॉकडाउन उनका मूड हो जाए और तो ओवरशूट डे ये कॉन्सेप्ट उनको समझ आ जाए तो हो सकता है ऐसा लॉकडाउन 2020 में वो थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ, वो इट केम टू 28 जुलाई, थोड़ा फर्क पड़ा, जुलाई तक आए हम लोग, वो है, पर वापस हम लोग आ गए ना, वापस हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज, अब हम जो बात कर रहे हैं वो ऑल ओवर। सो मैंने आज जो टॉपिक बैक टू बेसिक्स। सिंपल मैं बताऊं, हमें इंडिया, हम
वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देख के उसको समझ रहे हैं कि वो लाइफस्टाइल हमें जीनी है। ठीक है, आपके घर में जो डॉटर इन लॉज है, डॉटर्स है, सन्स है, सन इन लॉ है, ग्रैंड चाइल्ड है, कहीं ना कहीं हम लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हुए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि अगर इंडिया के हिसाब से जिए तो हम 1 to 1 नहीं 0.7 अर्थ कंज्यूम करेंगे पूरे साल में। इंडिया के स्टाइल से जिए थे। और इंडिया कौन? हम इंडिया नहीं है, वी आर नॉट इंडियंस। रूरल इंडिया इज इंडियंस और रूरल इंडिया इज लुकिंग एट अस। गांव शहर की तरफ देख रहा है और गांव शहर में बदल रहा है, उसकी लाइफस्टाइल शहरों जैसी हो रही है। एक्चुअली वो गांव की तरह रहे और हम गांव की तरह लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो बात है। सो अभी तक टच वुड इंडिया का सबसे अच्छा कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ मदर अर्थ, क्योंकि इंडियंस ने हमेशा नेचर को अपनी माँ समझा है, धरती को अपनी माँ समझा है। हमने हमेशा पहले नेचर की पूजा की है, फिर हमने और कुछ काम किया है। हमारे सारे देवी देवताओं में कहीं ना कहीं नेचर का एलिमेंट है ही है, उनको हमने इस तरह से। पर आज अगर हम लोग हर एक चीज को अगर साइंटिफिक नजर से देखें तो नेचुरल एलिमेंट या जो भी हमारे ट्रेडिशन थे उसमें हमें कहीं ना कहीं साइंस भी दिखेगा क्यों ये होता था। तुलसी की पूजा करना, बनियन की पूजा करना, बर्ड है, हर एक चीज का मुशक। अब आप ये सोचो कि रैट is a very important component of the entire ecosystem. इसलिए गणेश का वाहन मूषक है। लेकिन आज हम लोग घर में एक रैट भी दिख, अभी भी एक रैट दिख जाएगा तो सबके पाँव ऊपर हो जाएंगे। एक गिलहरी कहीं दिखी तो बोले ना बाथरूम में नहीं जो कोई चिपकली है वहाँ पे। भाई अगर चिपकली बोले इंसान आ गया मैं बाहर निकल जाऊँ, हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? तो वही समझना है कि बैक टू बेसिक्स में वी हैव टू इंश्योर दैट वी लिव द लाइफ द वे माय ग्रैंडपेरेंट्स लिव्ड माय लाइफ और माय ग्रैंडपेरेंट्स पेरेंट्स लिव्ड द लाइफ। सो कैन वी गो टू नेक्स्ट? वाटर इंडिया का स्टिल कंजम्पशन बहुत कम है, बट ये बहुत स्पीड में बढ़ेगा इफ वी आर ऑल careless about how we are using. So next generation and our generation has to be very careful. And we have to inspire, in fact the West is getting inspired, but I don't know why we are not getting inspired by our own Sanskriti, our own tradition, our own things. Why we are leaving that behind and trying to emulate the West all the time. कमोड हमारे घर में आ गया है, अब लेफ्ट वेस्ट इंडियन सेटअप की बात कर रहे हैं। मैंने कमोड की बात क्यों की? बिकॉज इंडियन स्टाइल में जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिटिंग वाला पोजीशन में पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है और कमोड में बाय डिफॉल्ट हाफ टैंक या फुल टैंक, वो तो हम देखते नहीं, हम फुल टैंक ही बचाते हैं। बाय डिफॉल्ट 11 लीटर पानी जाता है जस्ट टू रिमूव योर आवर 500 ml ऑफ पी। 11 ml, 11 liters, 5 liters, 7 liters डिपेंडिंग ऑन द वाटर टैंक साइज। और वही चीज हमारी, सो दिस इज वन सिंपल एग्जाम्पल कि हाउ आर वी वेस्टिंग वाटर, हाउ आर वी डूइंग इट। हमारा दातुन जो था वो हम जब चबाते हैं तो हमारे यहाँ फेस योगा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा दातुन, हमारा एक्चुअली अलग अलग दातुन की अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो अर्जुन छाल वाला दातुन यूज करो, यू नो, अगर डायबिटीज का है तो नीम वाला दातुन यूज करो। उससे क्या हो गया, अपना योगा मसाज भी हो गया, आप चबाते भी गए साथ साथ में आपका। और पानी के आज की तारीख में आप नोट करना, जब हम ब्रश करते हैं तो पहले तो प्लास्टिक का ब्रश कितना चेंज करते हैं हम लोग, महीने में 2 चाहिए, मेरे हस्बैंड को तो ज्यादा चाहिए महीने में 2 ब्रश चाहिए। डेंटल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, जब तक ब्रश नहीं हुआ ढंग से डेंटल हाइजीन नहीं फील होता। सो आप एक इंसान महीने के साल के 24 ब्रश प्लास्टिक फेंकता है। टूथपेस्ट जो प्लास्टिक के अंदर है, उसका रैपर एनु पैकेजिंग સિમ્પલ સવારથી જે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ વોશરૂમમાં થી લઈને આપણું બ્રશ, આ બે જ આપણી જે છે એ ચેન્જ થઈ ગઈ છે। આ બે જ સૌથી પછી તો આખી હેબિટ તમે પોતે ચેક કરતા જશો। હું તો સવારની બે જ હેબિટની વાત કરું છું, એ આપણી ચેન્જ થઈ ગઈ છે। हम बदल गए हैं,
बारिश तो वो की वही है, लेकिन हम बदल गए। हम वो बारिश का मजा नहीं ले पा रहे। हम आके क्या टेंशन कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए थे, बहुत बारिश थी। बारिश तो वही की वही। पहला जमाना और था कि जब बहुत सारे इकट्ठे होते थे बारिश पे, वही हम कागज की नाव बना के बारिश में खेलने में मजा आता था, कहीं जाने का टेंशन नहीं था। आज छुट्टी हो जाएगी ऑफिस में क्योंकि बारिश बहुत आ रही है, आज लीव मार्क हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं था। आज मोबाइल को बचाने का टेंशन नहीं था बारिश में। पहले तो क्या मस्ती थी, बारिश आई तो आई, गीले हुए तो हुए, आजू बाजू को 2 छपाकले मार दिए, उसमें भी हंस लिए। पर अब ऐसा करने बैठे तो कपड़ा बगड़ी गया। आज ऑफिस में आवा गंदा कपड़ा लई ना जाओ, घरे जाओ तो बोले someone will scold, mother will scold us, I will scold. Can't you take care of yourself? So nature वैसा का वैसा ही है, हमारा बारिश और गर्मी सब वैसी की वैसी है। हम बदल गए हैं, हमारा काम करने का तरीका बदल गया है, हमारा नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया है। So can we come next? So आज ये मैंने कहा कि एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहूंगी, लेट्स मेक इट इन दिस वे, बिकॉज आज यहाँ पे मैं काफी सीनियर सिटीजन्स भी देख रही हूँ, आप भी बता सकते हो आपकी हैबिट चेंज हुई है, बिकॉज घर की वजह से कई बार मजबूरी में चेंज हो जाते हैं। आई रिमेम्बर मेरी दादी कहती थी, तुझे मैं फेसबुक पे रोज देखती हूँ, यार मुझे सीखा ये होता है कि हमको नहीं सीखा, बेटर है मत सीखना। तो मतलब बुआ आके बताती थी कि गीतिका ये कर रही है, गीतिका वो कर रही है, मुझे मोबाइल दिखाती थी। तो मुझे मेरी दादी ने कहा कि मुझे सिखा, मैं कहा दादी मत सीख, हम लोग भी चाहते हैं कि इस चीज़ को ना सीखे, इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसके पहले भी हम सही जगह सही टाइम हर जगह पहुंच जाते थे, उसके पहले भी हमें खबरें मिल जाती थी दुनिया में क्या हो रहा है, उसके पहले भी दोस्तों से बातें हो जाती थी, व्हाट्सएप मैसेज में नहीं फोन उठा के करते थे कि केवल चाले से, तो दो उसकी खाली इमोजी नहीं, उसकी आवाज से पता चल जाता था कि वो खुश है कि दुखी है। दुखी है तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था, हम उठा के अपना व्हीकल निकाल के उसके घर पहुंच जाते थे कि हम सुबह बोल बने। थिंग्स हैव चेंज्ड, हम बदल रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम और दुनिया को भी बदल रहे हैं। सो एक सिंपल बात बता रही हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी है कि फूड प्रेफरेंस टिफिन को लेके गांव में भी ये प्रेफरेंस चेंज हो गई। हम बात करें कि मैं आप में से कितने लोग टिफिन लेके जाते हैं, खाना ले जाते हैं, दिल करता है खाने का, खाने में से, या कभी होटल का खाना आ गया तो वो ज्यादा पसंद आता है। गांव में अगर आप जाओ तो काफी मदर्स ने खाना बनाना बंद कर दिया है, टिफिन में बच्चों को देना बंद कर दिया, काफी मदर्स ने। वहाँ पे प्लास्टिक के पैकेट्स आते हैं, 10 रुपए दे दिए, स्कूल से बाहर निकलो 10 रुपए का पैकेट ले लो, वो थोड़ा सा वो नाइट्रोजन ज्यादा, खाना कम, वो खा के पैकेट वहीं फेंक दें। मेरी एक बहुत ही काफी दिल की तमन्ना है, बहुत इच्छा है कि अगर हम इस तरह ले पाए कि एक गांव को लेके उसको प्लास्टिक फ्री बना पाए, क्योंकि गांव में खेत पे जहाँ प्लास्टिक आ गया है, इंस्टेड ऑफ द खेती पूरा प्लास्टिक भरा, हम सब ने नोट किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खाने की हैबिट, तो हमारे बच्चे जो है वो हमें सवाल पूछेंगे, बच्चों के बच्चे। आई एम श्योर दादा दादी आप अपने बच्चे, आई थिंक मेरा बेटा तो बोला मुझे पैदा ही नहीं करने बच्चे में, ऐसे माहौल में क्या पैदा करूँगा, बट या द क्वेश्चन इज दे विल द नेक्स्ट जनरेशन इज आस्किंग अस कि व्हाट आर यू लिविंग फॉर अस। अगर हम, मेरी काफ़ी अच्छा है कि भाई एक गाँव एट अ टाइम एक जेसीबी मिल जाए, पर क्वेश्चन एक यही आता है कि यहाँ से प्लास्टिक उठा के फेंकूंगी कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उठाने की बजाय क्या इसका बनना ही रिडक्शन ही कम हो सकता है, उसका बनना प्रोडक्ट प्रोसेस, उसका यूटिलाइजेशन रिड्यूस करें, बस कब तक उठाते रहेंगे, कब तक फेंकते रहेंगे, कब तक उसको संभालते रहेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अभी प्लास्टिक की बोतल आई तो मैंने यहाँ रख दी, क्यों चाहिए हमें ये प्लास्टिक की बोतलें? क्या हम अपना खुद का पानी का बोतल उठा नहीं सकते, या थोड़ी देर नहीं रह सकते जी के? हमारी हैबिट्स नहीं थी ऐसा। मार्केटिंग बट वी आर बीइंग गिनी पिग्स, और हम उसको होने दे रहे हैं ना अपने आप को। सो यही बात है कि ड्रिंकिंग
water, can we just remove all that and try to use? अब ये वाला पानी उसमें एक घुट भी पानी नहीं आता है, हम 10 बॉटल पिएंगे जब बहुत प्यास लगेगी, और उसके बाद वो 10 बॉटल कहाँ जाती है हमें वाकई में नहीं पता। डिस्पोजेबल आइटम्स, घर में कौन बर्तन साफ करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॅकेजिंग बिलीव आल्याच डिस्पोजेबल, હવે આપણને સારું લાગે કે આપણે ડિસ્પોઝેબલ વાપરીએ છીએ, બાયોડિગ્રેડેબલ વાપરીએ છીએ, પણ એ બાયોડિગ્રેડેબલ એકચ્યુઅલી ડિગ્રેડ કરવામાં મહિનો વર્ષો લઈ જાય છે। પેપર, પ્લાસ્ટિક, કેમ કે વાસણ ધોવામાં કોણ ધોવે? કમ્યુનિટી સેન્ટર જ્યારે આપણે બધા ભેગા થઈએ ત્યારે આપણે કાંઈ આપણે ઓન પ્લેસ, હું જૈન છું, મને ખબર છે, હું જ્યારે નાની હતી ત્યારે સ્વામી વાત્સલ્યમાં અમે જતા હતા ત્યારે हम लोग हमारी खुद की प्लेट, घर से प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच लेके जाते थे और हमें कहा जाता था कि इसको साफ करके जब आप पियोगे पानी आपको 1 रुपया मिलेगा, और वो रुपया का देना जरूरी लगता था क्योंकि अगर रुपया नहीं मिला तो इज्जत जाती थी कि तूने इतना वेस्ट किया कि तुझे यू आर नॉट एबल टू क्लीन योर ओन डिश। तो शर्म आती थी, वो शर्म के मारे ही हमको जितना चाहिए उतना खाना लेते थे और फिर पानी डाल के धो के लिटरली पानी पी के, क्योंकि अपना खुद का खाने का ही पानी है ना, सूप है ना, आज क्लियर सूप नहीं पीते हम लोग, होटल में चले क्लियर सूप मंगाते तो क्लियर सूप ही है, वो पी के हम लोग दिखाते थे कि ये थाली है हमारी, हमको 1 रुपया देते। उस जमाने में रुपए की भी वैल्यू थी। तो डिस्पोजेबल का कांट भी गो बैक टू दैट प्रैक्टिस, आई प्रेफर टू डू दैट। मैं कोशिश करती हूँ जहाँ जहाँ हो सके वहाँ तक, मेरे घर से इतनी प्लेटें हैं मैं कब लेके जाएंगे, मेरे घर में होता कि प्रेफर कि हम लोग 5 नहीं 3 जन बेसिन में, पहले लेडीज इकट्ठी होती थी, बर्तन साफ करती थी, हाथ की एक्यूप्रेशर भी होते थे, सब कुछ होता था, अब आपस में बर्तन साफ करते करते बातें भी बहुत होती थी। घर में तो अभी भी करते हैं। लेकिन किसी के घर जाते तो वो खाना खाने के बाद वो उस प्रोसेस में हम भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। सो वो है डिस्पोज, और हमारा पहनावा, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोग अर्थ के ऊपर ओवरबर्डन करते जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग 3 जो है, कभी स्कूल में बच्चों के साथ घर पे भी बैठ के हाउ कैन वी डू दैट, कैन वी रिड्यूस, दैट्स इम्पोर्टेंट। आई बी क्विक नाउ, बस ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, जीन्स पहनते हैं, इंडियंस कभी जीन्स नहीं पहनते। इंडियंस के लिए जीन्स हमारा अटायर था ही नहीं। हमारे को धोती हुआ करती थी कॉटन की, मस्त, गर्मी है या कोई भी हो, लहंगा जब्बा या नॉर्मल पैंट्स एंड शर्ट, लेकिन जीन्स में हाईएस्ट वाटर कंजम्पशन, जीन्स इज द मोस्ट पोल्यूटिंग क्लॉथ एंड जीन्स, एंड इनफैक्ट ये सारा जो है वो पोल्यूटिंग, हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, जितना वाटर वो कंज्यूम करती है, जितने केमिकल्स वो यूज करती है। और अभी एक जीन्स नहीं, हमें जीन्स कैसे स्टार्ट हुआ था कि भैया वो लेबर क्लास के लिए, कि उनको बहुत कपड़े नहीं यूज करने की जरूरत पड़ती है, घिस भी जाए तो भी चल जाए, तो एक जीन्स 3 साल चल जाए, तो लेबर क्लास के लिए एक जोड़ी जीन्स दिया जाता। अब हमारे जीन्स में फैशन ऐसी हो गई कि हम जीन्स को फाड़ के भी पहनते हैं फैशन में, और एक जीन्स में हमें मल्टीपल जीन्स चाहिए। हाँ फटा हुआ ही पहनते, मल्टीपल चाहिए। सो हम लोग जो कर रहे हैं, और इसके बाद एक चीज अभी जो आज के जमाने में IVF का जो इश्यू हो रहा है, फर्टिलिटी का जो इश्यू हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ, सी हमारे IVF में एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो मेल है ना, उसके जो अंग है जहाँ पे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम चाहिए उसे, इसलिए वो बाहर है, बॉडी में अंदर नहीं है। जितना जीन्स पहनते हैं, जितने टाइट कपड़े पहनते हैं, वो टेम्परेचर हम उस एरिया में इंक्रीज करते हैं, और वो इनफर्टिलिटी के इश्यूज। स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो अगर वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और वो IVF के लिए जाना पड़ता है। कितने आजकल यंगस्टर्स IVF में जा रहे हैं। सो ये एक चीज़ है जो फैशन चैलेंज है। नाउ कैन आई हैव नेक्स्ट वन? सो मैं ये कहना चाहती थी कि अर्थ वॉज बॉर्न 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो, 4,500 मिलियंस ऑफ ईयर की एज है हमारे अर्थ की, और हम आए अभी 0.5 जब तो हमारे पहले तो अर्थ बस्ती से थी कितने साल, हमारे पहले
हम जब तक नहीं थे तब तक अर्थ में सब कुछ हो रहा था। हम यहाँ पे आए क्वाटरनरी स्टेज, ये वाला, यहाँ पे ह्यूमंस आए, ह्यूमंस का इवॉल्यूशन हुआ। उसके पहले इतना सब कुछ अर्थ में, मास एक्सटिंक्शन भी हो गए, नई स्पीशीज भी आ गए, चले भी गए, ये सारे एज ईयर्स है। और यहाँ पे अराउंड लास्ट 50 मिलियन ईयर्स ह्यूमन इवॉल्व होना शुरू हुआ। सो हम बोल रहे हैं सेव अर्थ। वो माँ जो ऑलरेडी यहाँ, वो हम बता रहे मे भी उसके पहले भी हो सकता है। सो बस इसी नोट पे मैं आप बताना चाहूंगी कि वी हैव टू सेव अवरसेल्फ एंड फॉर दैट जस्ट सेविंग अर्थ विल नॉट हैव हेल्प, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम करें, उसके ऊपर बोझ कम डालें। कैन हैव द नेक्स्ट वन। ह्यूमन पॉपुलेशन है ना हॉकी स्टिक की तरह, जे ग्राफ कहते हैं इसको, जे ग्राफ कहते हैं, हॉकी स्टिक ग्राफ कहते हैं। इस तरह हम लोग एस्केलेट हो रहे हैं। और जे ग्राफ जो भी इकोनॉमिक समझता है वो जानता है कि जे ग्राफ जब होगा तो स्टीप डाउन आएगा। तो जितनी हम एक हद तक कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे फिर स्टीप डाउन आएगा, स्ट्रेट डाउन। उसके पहले हमें थम जाना है। ये आज सुबह का हमारा पॉपुलेशन नंबर है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो करो 812, ये 592 याद रखते हैं, 160592, ये करीब 2:45 बजे के आसपास का नंबर है। This is a very wonderful site where we get to know the life की और population life क्या है। We can start. ये आपको उसमें खुलेगा, गूगल में मतलब कोई भी आपका इंटरनेट चालू है, नेट चल रहा है तो आपको वो लाइव वेबसाइट दिख जाएगी हमारे अर्थ की। हम लोग कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूअस माइक्रो सेकंड में बढ़ता जाता है, एक क्या बढ़ता जाता है। एंड उसके बाद उसमें आपको उसके वाइज भी दिखेगी, आपको कंट्री वाइज भी, कि कंट्री वाइज भी कैसे पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन है। So majorly अगर हम ये हमारी ह्यूमन इंडिया इज द लार्जेस्ट पोल्यूटेड, It's 217 हाँ 217,008 नहीं हो गया, अभी तो 15 भी हो गया, 20 भी हो गया। हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है, 6 घंटे में इतना बढ़ गया। और ये रियल टाइम नहीं है। अभी तो ये रियल टाइम देख रहे हैं। सो बट that's what it is in short, कि we have to ensure कि हम लोग जो भी करें, नए जनरेशन जो इस दुनिया में आ रही है, इतनी स्पीड से इस दुनिया में आ रही है, उसको एक अच्छी दुनिया मिले, उसको एक सही संस्कार मिले, उसको ऐसे लोग मिले जिनको उसको कॉपी करने में मजा आए, ना कि सवाल का जवाब सवाल करे हमसे। ऑलराइट, सो बस यही नोट पे आगे ना है। लास्ट वन मेरा ये हमेशा रहता है कि भाई हम जो भी डिसीजंस लें, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट पॉलिसी को लेके लें। प्लैनेट नेचर आ गया, पीपल सोशल एस्पेक्ट आ गया, पॉलिसी पॉलिटिकल, मतलब जो भी हम काम करें, जो हमारी पॉलिसी अलाइंड हो, स्ट्रक्चर हो, और प्रॉफिट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ये है चारों नेचर के कंपास। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, वैसे ये नेचर का कंपास। और ये नेचर को कंपास को जितना हम अलाइन करके जोड़ के रखेंगे उतना, दिस इज एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी। जितने ये नेचर के कंपास को हम अलाइन करके रखेंगे, साथ में जोड़ के रखेंगे, उतने ज़्यादा हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जैसे बोलते हैं ना 4-वे टेस्ट, ये नेचर का 4-वे टेस्ट है। पीपल प्लैनेट प्रॉफिट पॉलिसी, ये 4 में अगर यस होता है तो वो काम करना है। मैं प्रॉफिट इसलिए बोल रही हूँ कि हम ह्यूमंस जानते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी। पहले व्हाट इज इन इट फॉर मी, प्लैनेट પછી આવશે, प्रॉफिट પહેલા આવશે, વાંધો નહીં। प्रॉफिट પર ધ્યાનમાં રાખો, પોલિસી પર ધ્યાનમાં રાખો ताकि રાત્રે બરાબર સૂઈ શકીએ। અને પીપલ ટેક केयर ऑफ अवर पीपल, टेक केयर ऑफ द प्लैनेट। वो मेरा ये 4 प्रिंसिपल पे मेरा एजुकेशन भी डिज़ाइन किया गया है, पेडागॉजी भी, कि कैसे ये 4 को संभाला जाए, बिजनेस भी कैसे ये 4 को संभाला जाए। एंड सिमिलरली वी विल बी वेरी क्लोज टू ensuring that we are 31 दिसंबर तक
वापस 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अर्थ ओवरशूट डे लेकर आए। थैंक यू सो मच।